हेलो एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन सेशन ऑफ बीटीएससी डेंटल एग्जाम। हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस जो सेल्फ क्यूरेटेड है, जो हम लोगों ने बीटीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाए हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, या मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हमने लिए हैं जो एग्जाम में टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं और उन पर क्वेश्चन फॉर्म हुआ है विद आंसर। हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से। हेयरी ल्यूकोप्लेकिया is most commonly associated with EBV एब्स्टीन बार वायरस। हेयरी ल्यूकोप्लेकिया मोस्ट कॉमनली किससे एसोसिएटेड है? यहाँ पे ऑप्शन जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंग एब्स्टीन बार वायरस। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज, यहाँ पे बकल म्यूकोजा नहीं दिया हुआ है। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन इंडिया अगर है तो बकल म्यूकोजा, अदरवाइज मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग। लगा दो। रिगाफेडी डिजीज अकर्स ड्यू टू ट्रॉमा फ्रॉम नेटल टिथ। ठीक है, रिगाफेडी डिजीज अकर्स ड्यू टू ट्रॉमा फ्रॉम नेटल टिथ। A patient has multiple jaw cysts and basal cell carcinoma. Likely syndrome is Gorlin-Gorz syndrome. Common oral finding in anemia is glossitis. Anemia में common oral finding जो आपको दिखेगा वो है glossitis. Which cyst is associated with a non-vital tooth? Non-vital tooth के साथ कौन सा cyst associated है? Radicular cyst. Best stain to demonstrate amyloid in biopsies? Congo red. Best stain to demonstrate amyloid in biopsies? Congo red stain. Cafe Ole spots with multiple neurofibromas is suggests neurofibromatosis. Bull's-eye target lesions are characteristics of erythema multiforme. Question next. A 5-year-old presents with floating teeth radiographically. Most probable diagnosis is floating teeth। 5 साल के बच्चों में रेडियोग्राफी दिख रहा है तो Langerhans cell histiocytosis. Most common malignant salivary gland tumor is mucoepidermoid carcinoma. Strawberry tongue is seen in स्कारलेट फीवर। स्ट्रॉबेरी टंग आपको स्कारलेट फीवर में देखने को मिलता है। फॉर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन एक्टोपिक। फॉर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स आर एक्टोपिक सीबेशियस ग्लैंड्स। फॉर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स जो है वो एक्टोपिक सीबेशियस ग्लैंड है। कॉटन वूल अपीयरेंस इन रेडियोग्राफ्स इज अ फीचर ऑफ पेजेट्स डिजीज। कॉटन वूल अपीयरेंस रेडियोग्राफ में आपको दिख रहा है तो पेजेट्स डिजीज। Oral submucous fibrosis is most strongly associated with betel nut या erica nut. Oral submucous fibrosis is most commonly associated with betel nut or erica nut. Nikolsky sign is positive in pemphigus vulgaris. Nikolsky sign is positive in pemphigus vulgaris. Which lesion shows ductal pattern and Swiss cheese appearance? Which lesion shows ductal pattern and Swiss cheese appearance? Adenoid cystic carcinoma. Swiss cheese appearance किस में दिखते हैं? Adenoid cystic carcinoma में. The tongue condition with central erythema and migrating pattern is geographic tongue. The tongue condition with central erythema and migrating pattern is geographic tongue. A lesion at the angle of the mouth that is crusted and bleeding represents a lesion at the angle of the mouth that is crusted and bleeding likely represents squamous cell carcinoma. Most common site of adenomatoid odontogenic tumor AOT is maxillary anterior region. Most common site AOT का कहाँ होगा? Maxillary anterior region. Radiographically sunburst appearance is seen in osteosarcoma. Radiographic sunburst appearance is seen in osteosarcoma. An ulcer not healing for 3 weeks with indurated margins should raise suspicion for। एक ऐसा अल्सर जो 3 हफ्तों से हील नहीं हुआ है और उसकी मार्जिन जो है वो इंड्यूरेटेड है, ऐसा किस केस में होगा? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के केस में। What is the most common site of ranular formation? FOM, floor of the mouth. A 12-year-old child with painless jaw swelling and bilateral mandibular expansion likely has
चेरुबिज्म, एक 12 साल की बच्ची जिसको पेनलेस जॉ स्वेलिंग है और मैंडिबुलर एक्सपेंशन है दोनों साइड, वो कुछ ऐसा दिखेगा चेरुबिज्म के केस में। अ डूम शेप्ड रेडियोल्यूसेंसी ओवरलाइंग द मैक्सिलरी साइनस ऑन रेडियोग्राफ इज मोस्ट लाइकली, एक डूम शेप्ड रेडियोल्यूसेंसी होगा जो कि मैक्सिलरी साइनस को के ऊपर से हमें दिखेगा रेडियोग्राफ में, वो हो सकता है एंट्रल सूडोसिस्ट, एंट्रल सूडोसिस्ट, मैक्सिलरी साइनस के ऊपर एंट्रम में एंट्रल सूडोसिस्ट दिखेगा हमें। ये हमारा क्वेश्चन 25 to 50 हुआ। नेक्स्ट में हम लोग 50 to 100 क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।